بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ملک شاہ زیب۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 ایسے سیکرٹس بتاؤں گا جو آپ کو کبھی بھی نہیں پتا ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا سا اوور ویو دے دوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں زیادہ اچھے سے کلیئر ہو جائیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ یہ ہے جنت البقیع قبرستان، اور اس کے ارد گرد یہ گول روڈ بنائی گئی ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ جب زیادہ رش ہوتا ہے تو ہر طرف سے روڈز اس گول روڈ کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں تاکہ ہر طرف سے لوگوں کے آنے کے لیے آسانی ہو۔ اس گول روڈ کے اندر بہت سارے ہاسپٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز بھی ہیں۔ جب لوگ یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر ان ہوٹلز میں رہتے ہیں۔ یہ ہوٹلز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے قریب ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ 5 منٹ میں اپنے ہوٹل سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد جاتے ہوئے راستے میں مدینے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بازار ہیں۔ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان بازار سے بہت سی چیزیں لے کر اپنے اپنے ملک میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جہاں سے آئے ہوتے ہیں وہاں پر بہت سی چیزیں خرید کر واپس لے کر جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنی بڑی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہے، مدینہ پورا شہر بھی اس سے چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ اس وقت مسجد چھوٹی سی تھی، آس پاس کچھ درخت تھے اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھر ہوا کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مسلمان زیادہ ہوتے گئے اور مسجد کو بڑا کرتے گئے۔ یہ آپ دیکھیں، کچھ سال پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی چھوٹی سی تھی کہ گاڑیاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جایا کرتی تھیں۔ تو چلیں اب آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکرٹس بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سیکرٹ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا کنواں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 22 نمبر گیٹ کے باہر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ ہوا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے تھے اور باب فہد کے اندر ان کا کنواں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں سے پانی بھی پیا کرتے تھے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے کنویں کی پرانی تصویر ہے، یہاں پر وہ کنواں ہوا کرتا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بڑا کیا گیا تو اس کنویں کو ختم کر دیا گیا، لیکن نشانی کے طور پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1233 ریک کے پاس قالین کے نیچے ٹائل سے اس طرح گول کر کے ڈیزائن بنا دیا گیا، یہ اس چیز کی نشانی کے لیے کہ یادگار کے لیے کہ یہاں پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا کنواں ہوا کرتا تھا جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ جب قرآن پاک کی یہ والی آیت کہ تم ہرگز برائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ جو کنواں تھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سیکنڈ نمبر پہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر، یہ باب بقیع دروازہ ہے، اس سے تھوڑا سا ادھر کر کے اس جگہ کے اوپر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے رہنے کے لیے تو کوئی گھر نہیں تھا، تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کے گھر تعمیر ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں رہے تھے۔ یہ اس گھر کی پرانی تصویر ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تھی تو اس وقت اس کی اونچائی کتنی رکھی تھی؟ تو ریاض الجنہ میں پلرز کے اوپر یہ جو گولڈن کلر کے کڑے لگے ہوئے ہیں، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی تو اس وقت مسجد نبوی کی اونچائی اتنی رکھی تھی۔
फोर्थ नंबर पे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 7 हिजरी में बड़ा किया गया था तो उस वक़्त उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा की गई थी। तो ये मेहराब उस्मानी के ऊपर साइड्स पे ये आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन सा बनाया हुआ है। ये इस चीज़ की निशानी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी की ऊंचाई 7 हिजरी में जब ऊंची की गई थी तो उसकी ऊंचाई इतनी कर दी गई थी। ये इस चीज़ की निशानी है। नेक्स्ट, अगर हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर की थी उसका क्या साइज़ था। तो मस्जिद नबवी में इस टाइम पे कुछ पिलर्स के ऊपर ये बहुत खूबसूरत करके मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। ये पिलर्स एक लाइन में हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी की इतनी लंबाई हुआ करती थी और ये इस तरह चौड़ाई की तरफ भी एक लाइन में है। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी की इतनी चौड़ाई हुआ करती थी। नेक्स्ट, ये जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी खूबसूरत करके किबला वॉल सजाई गई है, मेहराब पर जो लिखा गया है और पांचों दरवाजे के ऊपर जो आयात लिखी गई हैं, ये किसने लिखी हैं। किबला वॉल में ये ग्रीन कलर की एक प्लेट छुपा कर लगाई गई है। इस पर इनके बारे में लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने ये सारा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा है, इनका नाम अब्दुल्ला ज़ुहदी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हज़रत तमीम रज़ी ताला अन्हो की नस्ल में से हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरती से ये सब कुछ लिखा है। इस ग्रीन प्लेट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। 7th नंबर पर किबला वॉल में ये सदक अल्लाह से पहले ये आप देख सकते हैं ब्लैक से कलर का निशान है। ये निशान इस चीज़ की निशानी है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस जगह के ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हो का यहाँ पर घर हुआ करता था। नेक्स्ट, हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हो के घर के इस तरफ हज़रत जाफ़र रज़ी ताला अन्हो का घर हुआ करता था और इस तरफ हज़रत नौफल बिन हारिस और अमार बिन यासिर रज़ी ताला अन्हुम के घर हुआ करते थे। नेक्स्ट, ये जो किबला वॉल में खिड़की बनी हुई है, ये इस चीज़ की निशानी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो का घर हुआ करता था। नेक्स्ट, हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो का घर। ये जो सब्ज़ गुंबद आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा का घर हुआ करता था और इसके थोड़ा सा इस तरफ करके इस जगह के ऊपर हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो का घर हुआ करता था। इसी की सीध में थोड़ा सा आगे करके और भी सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हुम के घर हुआ करते थे। तकरीबन इस जगह के ऊपर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हो के घर हुआ करता था। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस जगह के ऊपर खड़े होकर आपने देखना है और फील करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस जगह के ऊपर हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो का घर हुआ करता था और इसी घर में उनकी शहादत हुई थी। नेक्स्ट, बाबुल आइमा। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 42 नंबर गेट को कहते हैं। इस गेट से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम मस्जिद में मेहराब उस्मानी तक जाते हैं जहां उन्हें नमाज पढ़ानी होती है। इसको बाबुल आइमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब है इमाम साहब के लिए दरवाज़ा। इसके छत पे ये सब्ज़ कलर का गुंबद बना हुआ है। इसके नीचे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और छोटा सा एक और सिल्वर कलर का गुंबद बना हुआ है। इसके बेसिकली एग्जैक्ट नीचे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और ये छोटे छोटे से आपको और बहुत सारे गुंबद जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये तुर्की दौरे हुकूमत में इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस वक़्त जब अजान दी जाती थी तो उस वक़्त लाउड स्पीकर तो नहीं होते थे, तो ये जो गुंबद थे इससे अजान जो है वो हर लोकेशन हर डायरेक्शन में फैल जाती थी, आवाज़ ज़्यादा हो जाती थी। इसलिए तुर्की वालों ने आवाज़ को हर सिमत में बढ़ाने के लिए ये वाले बहुत सारे छोटे छोटे से गुंबद बनाए थे। नेक्स्ट, फनरल प्लेस। ये वो जगह है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाया करते थे।
तुर्कों ने इसके इर्द गिर्द दीवार बना दी थी, लेकिन अब ये जो चीज़ें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़रूरत होती हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं। आज के दौर में इसमें मस्जिद में जो एसी लगाए जाते हैं उनके आउटडोर इसमें हैं, हरम में जो पर्दे वगैरह लगाते हैं उनका सामान इसमें पड़ा होता है। इसको एक स्टोर की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ से चीज़ें निकाल कर किसी भी दरवाजे में सहन के ज़रिए बड़ी आसानी से लेकर जाई जा सकती हैं। नेक्स्ट, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो के दौर हुकूमत में मस्जिद नबवी छोटी सी हुआ करती थी। उस वक्त मेहराब यहाँ पर हुआ करता था, तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो इस जगह के ऊपर नमाज़ पढ़ा रहे थे तो एक ग़ुलाम ने उनको इसी जगह के ऊपर जहर वाला खंजर मार कर ज़ख्मी कर दिया था, जिससे 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। निशानी के तौर पर कालीन के नीचे फ़र्श पर ये वाला गोल सा सर्कल बना हुआ है, जो कि इस चीज़ की निशानी है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो के दौर हुकूमत में मेहराब यहाँ पर हुआ करता था और उनको इसी जगह के ऊपर उस ग़ुलाम ने खंजर मार कर ज़ख्मी किया था। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो के बाद हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो खलीफा बने तो उन्होंने मस्जिद के साइज़ को बड़ा कर दिया और यहाँ से मेहराब ख़त्म करके थोड़ा सा आगे ये जिस जगह पर आज मेहराब है यहाँ पर मेहराब बनाया, इसलिए इसको मेहराब उस्मानी कहा जाता है। और मस्जिद नबवी में आज भी इमाम साहब इसी जगह से इसी मेहराब से नमाज़ पढ़ाते हैं और इसी के ऊपर वो जो सिल्वर गुंबद आपको नज़र आता है वो इसके ऊपर बना हुआ है। तो ये थी हमारी आज की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीक्रेट्स की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे सबसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा है। और एक बात, मेरी अम्मी की डेथ को आज 3 साल हो गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि काइंडली उनके लिए 3 बार सूरह इखलास पढ़ के उनके लिए दुआ कर दें। और इसके अलावा मैंने और बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप वो भी देखिएगा। और बहुत शुक्रिया मेरी अगेन वीडियो देखने का। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।